यहाँ नहीं, किसी भी की जगह पे जाएं, अपने ऊपर बिलीफ लेके जाएं कि यस आई कैन डू इट। वॉइस इंटोनेशन क्या होता है? वॉइस की पिच को वेरी करना, टोन को वेरी करना। तो हाथ ऐसे चलेंगे। लेकिन जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ या मुझे कुछ आपको कहना है या बात कर रहा हूँ और उसको कोई यूज नहीं है, तो फिर मैं इनको यहाँ रखूँ। बिगिनिंग है ना, जो ओपनिंग है आपकी गुफ्तगू का आगाज जो है, वो सोच समझ कर थोड़ा सा प्रिपेयर होकर हम करते हैं तो ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इनकी आ गई है पहले क्रिटिकल थिंकिंग। माशाल्लाह, आइए। Assalamu alaikum everyone. वेरी गुड, वालेकुम अस्सलाम। Okay, so I will be talking about critical thinking today, जो कि fifth skill है हमारी, and we really need to develop this one. तला साहब टाइमिंग्स का ख्याल रखिएगा। अब 5 मिनट्स है। What is critical thinking basically? Critical thinking is thinking straight, using your mind to think logically and making your own decisions. It's not about believing what other people say and following what everyone is following. It's about using your own facts, using your own logics, and making your own decisions. So, one important aspect of critical thinking is that not letting the emotions take over you, take over your decisions. Because usually when we are upset, when we are sad, or when we are scared, we make decisions, we make very quick decisions, and they are usually the wrong decisions. So a critical thinker usually takes time, stays calm, and then decides what he wants to do. And we use this skill in our daily lives, in our work, in our study, and in our personal life as well. So, it is the ability to analyze, evaluate, and form judgments logically. And it focuses on reasoning over assumptions and emotions, like I said, not making decisions when you are scared or when you are angry or when you are sad. And the third is it involves observation, interpretations, and observing the facts, not emotions while making any decision. So why is it important? Why do we even need this skill? It helps us avoid fake news and scams, especially the news we see on social media. We just see that and we start believing it. A critical thinker does not do that. They check for the sources. They check, is that news even valid or not? So it helps us avoid any fake news and avoid any wrong decisions. The second and most important thing is it improves our creativity. By thinking, when we say that we think critically, we start looking at things from very different perspectives, not just one point of view. जैसे कहते हैं हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, right? So we think about and we see things from every perspective, from every corner, and by that we get new ideas, and that improves our creativity. And it makes us more confident as well. When we think and when we know that we make the right decisions, we eventually become confident as well. And people also start believing in our decisions. And it helps us build smarter choices in our work, in our job, and in every aspect of life. How to develop critical thinking? Now, how to develop this really important skill? Are you all aware of the term muscle memory? Yes. Right? So, जो नहीं है aware इस चीज़ से, there is a term named muscle memory. We learn how to drive, and when we are the beginners, we are very focused on driving. But eventually, with time, we get so comfortable with that our muscles are already trained with that. And we are eating, using phone, and we are driving, right? So that's muscle memory. To develop this skill, we train our brain just in that way. At the start, it is really hard to train it, but eventually it becomes so comfortable that we start making good decisions normally in a casual way as well. So it starts with asking why and how and questioning everything, and not just believing what the other person has told you. It starts by asking why are you saying that?
how it is true, right? Okay, so the second tip to develop is that by challenging your own opinions and beliefs as well. Am I making the right decision or am I not making the right decision? By challenging your own decisions, we come to a conclusion where we know that this is the right decision, this is the right thing for me right now. And by playing brain games. The best brain game, we all are aware of it, it's chess. It helps to develop critical thinking because we just don't think about our next move, we think about 2 moves ahead as well while playing it. So it helps develop critical thinking. And other brain games as well, there are a lot of brain games online, Scrabble and a lot of them. It helps develop critical thinking. And we learn from our mistakes. We have already made a decision, we change it, we learn from it, and the next time the same incident occurs, we don't make the same decision. Are there any questions? Thank you very much. लास्ट टाइम आप एब्सेंट थे ना, नहीं आए थे, कमी महसूस हो रही थी, बट जस्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे. बहुत खूबसूरत तरीके से फ्लो बड़ा अच्छा, ख़ास तौर पर इंग्लिश में जब हम बोल रहे होते हैं, बिकॉज वो हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो उसमें यूजुअली हमारी पिच इतनी अच्छी नहीं रहती. ठीक है, बात इनकी पिच बहुत अच्छी रही, फ्लो बहुत अच्छा रहा, कभी कभी चेहरे पे बहुत खूबसूरत सी स्माइल भी आई, हैंड्स मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त थी, अभी भी आखिर में भी बहुत अच्छा लगता है. व्हेन यू ऑगमेंट, जब आप सपोर्ट करते हो अपने अल्फाज को अपने हाथों के साथ, तो इट्स ए 2 in 1, 3 in 1 बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, हैंड्स की मूवमेंट. एक चीज़ जो आपकी सेकंड लास्ट स्लाइड है उसमें मुझे चाहिए, पता नहीं वो क्यों हो गया, आपसे ये तवक्को नहीं थी, आपने चेक नहीं किया, जल्दबाजी में बनाई, उसका फ़ॉन्ट वापस आइए, वापस. हाँ, कैन यू रीड इट? नहीं हो, बट ऑन माय लैपटॉप, बट हाँ यहाँ पे नहीं नजर आ रहा. ठीक है, हाँ, नहीं, बट इट्स ओके, दैट्स व्हाई वी आर हियर ना. ये इसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी फिर ऐसी कोई जगह हो, यहाँ तो हम सब लर्नर्स हैं, बट अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो किसी ऐसी जगह पर, मे बी इन द जॉब और द प्रोफेशन या क्लासरूम में असेसमेंट या एवेल्युएशन हो रही हो, तो अल्लाह ना करे कि इसकी वजह से फिर हमें कोई नेगेटिव मार्किंग मिले. थैंक यू वेरी मच, आई एम सो हैप्पी, ग्रेट, माशाल्लाह. What do you feel about yourself regarding your first presentation and the last one? Okay, so now I am able to look at the audience. मैं नहीं देखती थी पहले. पहले ऑडियंस को नहीं देख सकते थे, अच्छा नहीं लगते थे. मैं नर्वस हो जाती थी. सॉरी, नर्वसनेस की वजह से. और अब मैं नहीं. वो कैसे? सर आपने बताया था पहली प्रेजेंटेशन में. अच्छा. ओके. ऐसा करके I started looking at everyone. ओके. ओके, चलिए इसको आप स्प्रेड कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा मुलाकात पता नहीं कब होगी, आई डोंट नो, बट स्टे इन टच व्हेन एवर यू नीड माई हेल्प. बट प्लीज़, सिंस दिस इज़ अ सदका जारिया, whatsoever you learn and you're convinced and you feel that this is something very important for me today and tomorrow, प्लीज़ स्प्रेड इट. अपने कॉलीग्स में, फ्रेंड्स में बताइए. कभी आप उनकी प्रेजेंटेशन देख रहे हो, उनकी बातचीत चल रही हो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, तो आप उनको बताइए कि क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर मैंने तो लोगों को पढ़ाया है, आपने हमें पढ़ाया है, तो इसमें ये इज इट ओके, सबके लिए बाय द वे, राइट? आइए जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम आदिल ज़ुल्फ़कार है और मेरी आज की जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग. तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या हैं और इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है. तो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ टू फॉर्म ऑफ जजमेंट और डिसीजन. आदिल साहब प्लीज़, सब वापस जाइएगा प्लीज़. मैं चाहता हूँ कि यहाँ गलती हो गई, हम साथी हैं, ठीक हो जाएगी, कहीं बाहर ना हो जाए. क्रिटिकल थिंकिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस. नो इशू, परेशान नहीं होना. ओके, एनालिसिस प्लीज़ जी, शाबाश. तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब गौर व फिक्र करना, सोचना, समझना और इस बात का ख्याल रखना कि जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या वो दुरुस्त है या नहीं,
क्वेश्चन करना, आपके जहन में क्वेश्चन आना क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। लोग हमें किसी चीज़ के बारे में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या जो लोग हमें बता रहे हैं उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्या उसमें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे या नहीं। तो ये है क्रिटिकल थिंकिंग। जब हमारे जहन में कोई क्वेश्चन आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से हम लोगों के सामने अच्छा बोल सकते हैं, हमें अच्छा सोचने की सलाहियत पैदा होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही है कि हमारे जहन में क्वेश्चन आना और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पर गौर व फिक्र करना। तो क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव इम्पोर्टेंस क्या है क्रिटिकल थिंकिंग में। तो सबसे पहले फोकस और अटेंशन। फोकस, क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से हमारी फोकस बढ़ती है, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में उस पर फोकस करते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेकंड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से हम मसले को बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं कि जो भी हमें बताया जा रहा है या जो भी हमें मसला पैदा हो रहा है तो क्या वो दुरुस्त है, कि उसको कैसे हल किया जा सकता है। तो हम उसके बारे में सोचेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। जब हम दोस्तों से अपने मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। जब हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो हम लोगों के सामने अच्छा बोल सकते हैं और लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन भी बेहतर होती है। इम्प्रूव, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। हमें सुनने की आदत बनानी चाहिए कि जो लोग बोल रहे हैं, न्यूज़ या कोई भी चीज़, पहले हमें सुनने की आदत बनानी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम सुनेंगे हमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी बेहतर होगी। आस्किंग क्वेश्चन, हमें लोगों से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि व्हाट, व्हाई, क्यों, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम मसले को बेहतर तरीके से हल करेंगे। रीड वाइडली एंड डीपली। हमें डेली पढ़ना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए, न्यूज़ को पढ़ना चाहिए। जब हम डेली रीड करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी बेहतर होगी। प्रैक्टिस, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स। हमें डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों के दलाइल सुनने चाहिए, अपने मुखालफिन के दलाइल सुनने चाहिए, अपने दलाइल पेश करने चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं और हमारी क्या मिस्टेक है या उसमें कौन सी कमी पेशी जो हमें पूरी कर सकते हैं। सेट थिंकिंग गोल। हमें अपने थिंकिंग गोल सेट करने चाहिए। जब हम सेट गोल कर लेते हैं तो हमारा फोकस और टेंशन उसकी तरफ होती है और हम एक बेहतरीन, यानी कि अपने गोल को अचीव करने में बेहतर तरीके से कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। इसको इधर ही रहने दें, वापस चाहिए, चले, इट्स ओके। क्या हुआ? कुछ यार, रियली आई एम वेरी एक्साइटेड। छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, नॉट एन इशू। ये वही आदल साहब हैं। हमने जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी इनको भेजे हुए थे, आपको मिल गए थे पहली प्रेजेंटेशन के? अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आज की प्रेजेंटेशन है ये भी आपको मिल जाए, ठीक है मिस सादिया? जिस तरह फर्स्ट प्रेजेंटेशन हमने इनको ऑलरेडी भेज दी थी ना, तो ये भी इनको भेज दीजिएगा। अपने आप में फ़र्क महसूस कीजिएगा कि जब हम आए थे और पहली हमारी प्रेजेंटेशन क्या थी और अब हमारी प्रेजेंटेशन या कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है? एक वर्ड आया था, परेशानी की बात नहीं, अच्छा, बट ये फ़र्ज़ बनता है हमारा, ये मैंने इसलिए रुकवा दी थी। ये क्या है? डिबेट। तो आपको आता है तो फिर परेशानी कैसी? डिबेट, डायबिटीज़ नहीं है ये, अच्छा, डायबिटीज़ शुगर होती है, राइट? चले, अच्छा, फ्लो अच्छा किया आपने, हैंड्स को मूवमेंट बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छी चीज़ पता है मुझे क्या लगी? जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि तू ये आपसे निकलें और हम और हमें पे आएँ। तो इन्होंने थ्रू आउट अपनी प्रेजेंटेशन हम और हमारी, हम अगर ये करें तो हो सकता है, हमें ये करना चाहिए, हम बजाय इसके कि आपको ये करना चाहिए, आप ये करते तो हो जाता, आप नहीं। दिस इज समथिंग वेरी गुड। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। और अब मुस्कुरा रहे हैं, तब क्यों नहीं मुस्कुरा रहे थे? हाँ, थोड़ी सी मुस्कुराहट चाहिए, ऐसे हमें पता चले कि आप एंजॉय कर रहे हो। यहाँ नहीं, किसी भी की जगह पे जाएं, अपने ऊपर बिलीफ लेके जाएं कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू, आई विल, आई डिड इट। रिपीट करेंगे? जा रहे हो? नाराज हो गए? नो सर। मैंने क्या कहा? रिपीट करेंगे मेरे साथ?
आई कैन, I can, आई विल I will, और अल्टीमेटली आई डिड। I did। ठीक है, उसको मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, अपने साथ मेरी कमिटमेंट है, ए देखो मैंने कर लिया, जी। आई डिड इट, शाबाश। चले नेक्स्ट प्लीज। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। My name is Arishpa Liaquat. I am student of BS Information Management from Punjab University. Today topic is critical thinking. We discuss about what is critical thinking, its benefits and its importance, and how it can be developed. Critical thinking means thinking about your thoughts and questioning instead of just blaming as are true. मतलब कि आप अपने माइंड से सोचें, आप उस चीज़ को सोचें, उसके बारे में मतलब उसको मतलब इतना करें कि सॉरी हाँ, आप उसके बारे में सोचें और उसको उस पे ऐसे बिलीव ना करें कि वो ट्रू है, वो गलत भी हो सकती है। That means critical thinking. Critical thinking also about your thoughts, your decisions, your beliefs. Its benefit and its important. Better decision making. Better decision making में critical thinking का बहुत important वे है, मतलब कि better decision making में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। आप उस चीज़ को ना देखें कि आपका फ्रेंड किस में जा रहा है। मैंने बहुत से ऐसी स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने जस्ट फ्रेंड्स को देखते हुए किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में या किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो आप अपने बारे में सोचें, खुद के बारे में सोच के अपने थॉट्स के, अपने डिसीजंस के, आपने आगे करना क्या है उसके बारे में सोचें और फिर डिसीजंस लें। और इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरा पिछले वीक मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था और मैंने ना मतलब कुछ सोचे बगैर उसकी स्ट्रिप चेंज करवा दी और बाद में वही सेम इशू, मेरा चार्ज नहीं हुआ। मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि उसमें इशू क्या है, मेरे चार्जर में इशू आ रहा है या मेरे मोबाइल में इशू आ रहा है। मैंने कुछ सोचा नहीं और मैंने उसको चेंज करवा दिया और उसका क्या फिर भी चार्ज नहीं हुआ। तो मैंने फिर चार्जर चेंज किया। तो हमें चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप जो हमारी प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप देखें कि हमारा प्रॉब्लम है कहाँ पे, फिर हम डिसीजन लें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अगर मुझसे या हमसे कोई डिसएग्री कर रहा है हमारे डिसीजंस पे, तो हमें उसको आराम से सुनना चाहिए कि आखिर वो मतलब उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हमसे प्रॉब्लम है कि वो हमसे डिसएग्री कर रहा है। और उसको देखते हुए मुझे उससे लॉजिकली रिस्पॉन्ड करना है, ना कि एंगर में। उसको गुस्से से रिस्पॉन्स नहीं करना। इससे ऐसे ही हमारा फिर रिलेशन बिल्ड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये डेवलप कैसे होगी। बी पेशेंट एंड ओपन माइंडेड, मतलब कि गुड थिंग्स टेक अ टाइम, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। मतलब कि आप टाइम थोड़ा इसको पेशेंट रखें और अगर मेरे से किसी को इशू है तो मैं उससे सुनूंगी कि उसको क्या इशू है, फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी और मैं उसकी जो कंडीशन है उसको देखूंगी और मैं उसको फिर सारा उसका मैटर सॉल्व करूंगी। लर्न टू स्पॉट बायसेस। बायसेस का मतलब होता है कि किसी को पर्सनल सपोर्ट ना देना। मतलब जैसे किसी 2 पर्सन है, उनका इंटरव्यू है, तो एक तो जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, एक उसका भतीजा है, मतलब जो इंटरव्यू के लिए आया है, एक उसका भतीजा है और दूसरा मतलब एक जो काफ़ी जो उस पोस्ट के लिए बेस्ट है, पर वो अपने भतीजे को करेगा
और उसको जॉब दे देगा। ऐसे नहीं करना। पर्सनली आपने इमोशनली नहीं सोचना, आपने उसको सपोर्ट नहीं करना। आप थिंक करें कि ये हमारे लिए बेस्ट क्या है और उसके लिए बेस्ट क्या है। और सेट थिंकिंग इसमें है व्हाट अजम्पशन आई एम मेकिंग। अगर मेरी कोई प्रेजेंटेशन है जैसे, और मैं तैयार करूँगी और मैं देखूँगी कि मुझसे कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं लोग, तो मैं उसको प्रिपेयर करके जाऊँगी और उसके बारे में सोचूंगी। थैंक यू, थैंक यू अलिशा, थैंक यू वेरी मच। सबसे अच्छी एक चीज़ जो मुझे लगी कि इन्होंने कुछ चीज़ें जो कि स्लाइड पर नहीं थी बट एज ए पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन ये तैयारी करके आए हुए थे। ठीक है, जिस तरह अभी याद कर रहे थे आप, अज्यूम ना करें, ये ना करें, वो ना करें, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स इन्होंने दी जैसे। और बड़ी अच्छी एक बात की कि यूजुअली जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम होता है या हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते तो डिसीजंस यूजुअली गलत हो जाते हैं उस प्रॉब्लम्स की वजह से या उसको स्ट्रेस में लेने की वजह से, कंफ्यूज होने की वजह से। दैट्स बेटर कि उसको इनके बकौल कि हौसला करें, उसको ब्रेक डाउन करें छोटे पीसेस में और ग्रेजुअली सोचें, स्टेप बाय स्टेप आगे चलें और एकदम से अब्रप्टली कोई डिसीजन ना लें। तो इसलिए फिर अगर क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी तो आप बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकेंगे। ठीक है, और मुझे आपके कंटेंट बहुत अच्छे लगे, बड़ी टू दी पॉइंट थे, स्पेसिफिक थे, और जो क्रिटिकल थिंकिंग का ट्रू स्पिरिट है वो आपने एटलीस्ट तीनों क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस अगर और हम कर लें। देखिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ, दिस इज़ ए लर्निंग सेशन, राइट? दिस इज़ योर लास्ट सेशन, बट फॉर यू यहाँ लास्ट सेशन है, बट यू शुड थिंक अबाउट इट कि दिस इज़ योर बिगिनिंग। रियल लाइफ पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर ये कदम कदम पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अलिशा, ठीक है, तो दिस इज़ योर बिगिनिंग। अब इसके ऊपर हमने बिल्ड करना है और डेवलप करना है, उसको यहाँ पर छोड़ नहीं देना। और जब भी कभी क्लासरूम में या किसी भी ऐसी एनवायरनमेंट या सा अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप ज़रूरी नहीं कि ऐसे फॉर्मल प्रेजेंटेशन करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ बोलने की, कुछ कहने की, तो प्लीज़ टेक द इनिशिएटिव। लोग पूछते हैं हाँ जी कौन इसके बारे में कौन बताएगा? तू बता ना, तू चलना। नहीं, यस इट्स मी, इस तरह है। आप बैल मुझे नहीं, अब ये चेंज हो गया, ये पुरानी बात है। आज हम कहते हैं आ बैल मुझे जोर से मार। आ बैल मुझे जोर से मार मीन्स कभी लोग सोच रहे हो किसने आना है, इट्स मी सर। वाह, रियली। तो फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा पड़ता है। और उसके बाद देखिए कि आपके जो भी आपने गुफ्तगू करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, टॉक देनी है, इंटरेक्ट करना है, उस पर कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है रिश्वा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट इज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले माई सेल्फ मलिक दानिश इकबाल, बाकी आप लोग मुझे जानते ही हैं, तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। आज की मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग। इससे पहले हमने 4 C's जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट वन था कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के बाद हमारे पास था कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद हमारे पास था आई थिंक कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन के बाद हमारे पास था क्रिएटिविटी, जो लास्ट हमारा सेशन था, और आज हमारे पास 5th C है क्रिटिकल थिंकिंग। सो बेसिकली व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग? Critical thinking is about thinking clearly, carefully and smartly before doing anything. You are generating an idea, you are solving a problem, कोई भी मसला है तो उससे पहले आपने अपने माइंड को रिलैक्स करके आपने बिल्कुल इजी होकर उसके बारे में सोचना है, डिसाइड करना है कि क्या इस चीज़ को मैं किस तरह इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये मुझे बेटर रिजल्ट इसका मिलेगा। एनालाइज एंड एवेलुएट इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ क्लियर जजमेंट। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले या हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसे आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें। डिफरेंट पार्ट्स को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें कि किस तरह से मुझे इसका बेटर सोल्यूशन मिल सकता है। आपने ये नहीं है कि आपने सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकालना है। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप बेस्ट सोल्यूशन ना निकाल पाएँ, लेकिन एक स्टेज तक तो पहुँचेंगे, नेक्स्ट टाइम आप वो स्टेज ऊपर करेंगे, लेवल जैसे जैसे आप होते जाएंगे। गो बियॉन्ड जस्ट थिंकिंग क्रिटिकली। आपने लॉजिकली सोचना है, क्रिएटिविटी आपने दिखानी है अपनी। सिर्फ ये नहीं कि आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया तो आपने उसका किसी तरह से हल निकाल लेना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है। प्रॉब्लम को जस्ट सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। हर कोई यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सेम प्रॉब्लम दे दी जाए तो सारे कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे।
लेकिन आपने ये देखना है कि आपने उस प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक डाउन करना है और लॉजिकली एंड क्रिएटिविटीली कैसे उसका बेस्ट सोल्यूशन निकालना है। क्रिटिकल थिंकिंग इज इट अबाउट थिंकिंग मोर बट थिंकिंग बेटर। यही चीज़ आ गई कि आपने क्या करना है, आपने एक खुले दिमाग से सोचना है और उसका एक अच्छा सबसे अच्छा सोल्यूशन निकालना है। Why it is important? So basically it is important for personal and professional growth। जिस फील्ड में भी आप हों, जो भी आप कर रहे हैं, उसके लिए ये चाहिए ही चाहिए। हमारे पास इसमें पहला पॉइंट आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। लास्ट हमने, जैसे मैंने अभी बताया, लास्ट सेशन हमारा था क्रिएटिविटी हमने डिस्कस की थी, तो उसमें हमारे पास इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप आ गई थी। तो बेसिकली क्या हमारे पास हमें न्यू आइडियाज़ जनरेट करने पड़ते हैं, हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हमारे पास डिफरेंट, सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हम कुछ यूनिक कर रहे होते हैं उसमें। तो हमने देखना है कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स को पहले हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर हमने वो देखना है कि हम इन प्रॉब्लम्स का कैसे बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं। देखिए, आप मार्केट में जाएं तो आपके पास बहुत से कंपटीटर्स होते हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस और इस तरह, मतलब उस साइड पे मैं नहीं जाता, तो काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें एवेलुएट करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है और उसके मुताबिक हमें डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग, जब तक आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग वाली स्किल नहीं होगी, आप कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। इसकी मैं एक बेस्ट एग्जांपल ये आपको देता हूँ कि हम जब यूनिवर्सिटी लाइफ में हमने आना था, तो हमारी सोसाइटी में हमारा शुरू से वो माइंडसेट बनाया होता है डॉक्टर इंजीनियर से बाहर हम नहीं निकलते। मतलब ये जब तक हम एफएससी कर रहे होते हैं, हमारे घर वाले भी हमें यही बता रहे हैं, डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना है, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाना है, आर्मी में चले जाना है, मतलब लिमिटेड हमारे पास यही ऑप्शन होते हैं। तो जब हम यूनिवर्सिटी में, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो जब मैं प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पर प्रोग्राम्स की जो फील्ड्स आई, इतने ज़्यादा प्रोग्राम थे कि मैं खुद हैरान हो गया कि अच्छा ये चीज़ भी होती है। तो वो चीज़ें हमें क्या होता है, हमने उसका एनालिसिस करना है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, हमने किस चीज़ में जाना है, उस टाइम को भी देखते हुए, फ्यूचर को भी देखते हुए, और उसका क्या करना है, उस पर डिसीजन लेना है। थर्ड वन इज़ अवॉइड मैनिपुलेशन। थिंक फॉर योर सेल्फ। आपने ये नहीं कहना कि सामने वाला मुझे जो कुछ कह रहा है वो सच है। फिल्टर ट्रुथ। अभी रिसेंटली अगर मैं आपको कहूँ तो इसराइल और इंडिया की जो टेंशन्स चल रही हैं वार से रिलेटेड, तो उसमें क्या है, मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, उसमें लिटरली उन्होंने वो शो कराए हुए थे कि वो इसराइली सिटीजन्स हैं और वो माफ़ी मांग रहे हैं कि ईरान वालों ने हमारा मुल्क तबाह कर दिया है और हमारा बहुत नुकसान हो गया, तो भला करो, हम पे हमला ना करो। तो ये क्या था, ये आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है। मैंने वो वीडियो देखी है, मुझे पता है कि ये झूठ है, मतलब इस तरह से जो भी बात है वो अपनी इमेजिनेशन, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हो सकता है कोई उसे तस्लीम कर लेगा, लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन था, मैंने उस पर एनालिसिस करके जो निकाला है कि ऐसा कुछ भी रियल में हुआ नहीं है, तो वो वीडियो क्या है, वो बेसिकली फ़ेक है। तो आपने फ़ेक वीडियोज़ को अवॉइड करना है। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सबसे मेन इसका पॉइंट है लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी एक लीडर होता है उसने अपनी पूरी टीम को लेके चलना है, उसने जो भी डिसीजन करना है वो क्या करना है, उसने जस्ट अपने आप को नहीं देख के चलना कि मेरी ग्रोथ होगी या मैं आगे चला जाऊंगा, उसने अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलना है, पूरी टीम को साथ लेकर चलना है। और वो क्या करता है, वो जिस तरह हम कहते हैं थिंक बिफोर एक्ट, वो कॉशंस के साथ चलता है, वो पहले एक एनालिसिस करता है, एवेल्युएशन करता है, उसके मुताबिक डिसीजन लेता है और अपनी लीडरशिप स्किल्स शो कराता है। फिर हमारे पास आ जाता है हम इसे डेवलप कैसे कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन, ये हमने लास्ट टाइम क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंसेस दूसरों के भी और जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग, डीप थिंकिंग करें, उसके बाद व्हाट्सएवर और डिबेट्स और डिस्कशंस का पार्ट्स। थैंक यू वेरी मच। दानिश, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा, सच्ची ग्रेट, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। अच्छा, मुझे इनकी जो प्रेजेंटेशन में जिनकी स्लाइड्स है ना, अगर आप गौर करें तो बहुत ही मिनिमल कंटेंट है स्लाइड्स में, एक एक दो दो वर्ड लिखा हुआ है बस। और जो अच्छी बात यह है कि इन्होंने इतनी तैयारी की या इतना पढ़ा या इतनी प्रैक्टिस की कि इनकी कमेंट्री बहुत अच्छी थी, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी। एक वर्ड को पकड़ा और उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया, दैट मीन्स कि ये तैयार होके आए थे कि जब ये स्लाइड में ये पॉइंट आएगा तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो इस मे बी इन्होंने उसको लिखा होगा, मे बी आइडियाज़ गैदर किए होंगे, रिटेन किए होंगे, याद किए होंगे, आई डोंट नो, व्हाट्सएवर ही डिड, लव इट, शाबाश। मुझे आप मुस्कराते हो तो मुझे आपका पहला दिन याद आ जाता है जब मैं आपसे 3 दफ़ा मैंने कहा था कि ज़रा मुस्करा के तो दिखाएं दानिश। हाँ, तो आप दैट इज़ द चेंज। कमेंट्री बड़ा नेचुरल वे में आप गए। एक चीज़ इसमें और, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है ना, एक चीज़
ये पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है? वॉइस इंटोनेशन। ओके सर। जब आप यहाँ पे आ गए हो ना तो थोड़ा सा वॉइस इंटोनेशन क्या होता है? वॉइस की पिच को वेरी करना, टोन को वेरी करना, स्पीड को वेरी करना, पेस कैसी है हमारी, इन बिटवीन दरमियान में कोई एक दो पॉजेज ले लेना, राइट। ये इसको टोटल सब फिनोमिना को क्या कहते हैं? वॉइस इंटोनेशन। ये इसकी थोड़ी सी अभी हमें और प्रैक्टिस करनी है। ओके सर। वरना अदरवाइज क्या होगा, अभी तो 6 मिनट की प्रेजेंटेशन है, बट कल हमें कोई आधा घंटा या पौना घंटा बोलना पड़ जाए और इसी टेम्पो में अगर हम बोलेंगे तो हमें डर है कि लोग बोर ना हो जाए। तो एनर्जी होनी, एनर्जी का क्या मतलब है? सोया बंदा एकदम एक ही हो गया, तो इस टाइप का। ओके सर, इंशाल्लाह मैं वॉइस आवाज़ की उतार चढ़ाओ और थोड़ा एनर्जी के साथ, बाकी मुस्कुराहट का माशाल्लाह क्या बात है। हाँ, खुश रहे। Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Ala Hashmi, and I am doing my BBA from IBA Punjab University Lahore. So the topic is critical thinking. So what is critical thinking? Critical thinking means thinking clearly and carefully to make a good decision. So सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुली सोचना पड़ता है कि आपके पास सारे फैक्ट्स हो, आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन हो, आप सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास जो हैं उनको कंपैरिजन उनका करें और उसके बाद आप एक डिसीजन पे आते हैं। उसे हम कहते हैं कि हमारा ये डिसीजन है। और जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो उसके आपको फैक्ट भी पता होने चाहिए कि उसके आउटकम्स क्या आएंगे, क्या चीज आएगी, और जो भी आउटकम्स होंगे आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो फर्दर हम आगे देखते हैं इसको, की पॉइंट्स। सो आस्किंग स्मार्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डीपली सोचना पड़ेगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये चीजें किस तरह हो सकती हैं, इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे पास इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन है नहीं है, या इसके बारे में हमें खुद से क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि स्मार्ट क्वेश्चन के क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज हो भी सकती है। द सेकेंड थिंग इज थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। सो किसी ने क्या खूब कहा है कि जबान से निकली बात और तीर से निकला कमान कभी वापस नहीं आते। तो जब हमसे एक बार एक्ट हो गया तो उसके बाद हम उसके लिए अपॉलॉजी कर सकते हैं अगर हम गलत हैं। मींस अगर भाई ने कोई मुझे बात कही है और मुझे वो बहुत बात उस टाइम बुरी लगी, लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी और मैंने उनको थोड़ा सा कह दिया कि यार मुझे ये बात नहीं बुरी लगी, उसके बाद मेरा एक्शन तो हो गया, लेकिन उसके बाद अगर मैं अपॉलॉजी करता हूं तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक्शन तो एक बार दोहराया गया है। The third thing is using facts not just opinion. कुछ लोग होते हैं वो अपने फैसले दूसरों के ओपिनियंस और उनकी एज और उनकी जो कहते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे लेते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। जब मैं एडमिशन लेना चाह रहा था तो मुझे मेरे भाइयों ने, मेरे काफी दोस्तों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने ये कहा कि यार यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। आई गॉट एडमिशन इन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। कुछ चीजें हुई उसकी वजह से फिर मुझे लाहौर आना पड़ा और उसके बाद फिर जहां मैं चाहता था तो फिर मुझे IBA में ही एडमिशन मिला। तो ये सारी चीजें थी कि आपको ओपिनियंस बहुत ज्यादा लोग देते हैं, लेकिन एक जो अच्छा लीडर हमेशा होता है जो अपनी सबकी बात सुनता है लेकिन मानता खुद की है। सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। जो चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं। अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो उसका पहले स्टेज 1 आता है, उसके बाद 4, 5, 6, 7 आता है। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही कंप्लीट होती हैं। बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, दूसरे लोगों के आइडियाज से सीखें, उनके बात सुने, अगर कोई अच्छी बात वो कहते हैं तो उस पर अमल करें। व्हाई इज क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट?
हेल्प यू मेक बेटर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ चीज़ शॉपिंग करने के लिए गया हूँ और मुझे किसी ओकेजन के लिए चीज़ कोई लेनी है, बाय करनी है, तो मैं उसको बहुत, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पेंट कोट लेना है तो मैंने एक अच्छी जगह पे ही पहनना होगा, तो उसके लिए मैं डीपली मैं प्राइस एनालाइज करूंगा, मैं उसका जो है कॉस्ट आ रही है, उसकी स्टेप देखूंगा, डिफरेंट जगह से मैं उसकी कंपैरिजन करके एक डिसीजन लूंगा और उसके बाद सॉल्व प्रॉब्लम फर्स्ट। वही बात आ गई है कि अगर मैं सारी चीजें एनालाइज कर लूंगा, डीपली सोच लूंगा, सब चीजें अल्टरनेटिव जो है कंपेयर कर लूंगा और उसके बाद चीजें फास्टर मींस के प्रॉब्लम जल्दी होगी, प्रॉब्लम फास्टर सॉल्व हो जाएगी। अवॉइड मिस्टेक, जब आप डीपली सोचते हैं तो आप कम ही मिस्टेक करते हैं और कंफ्यूजन कम ही होती है आपके पास। मेक योर आइडिया क्लियर, अपने आइडियाज के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर रहो कि आप क्या सोच रहे हो। हेल्प यू कीप लर्निंग, ये सारी चीजें अगर एक बार कर लो आप, तो उसके बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी लास्ट थिंग है हाउ टू बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। सो आस्क व्हाई एंड ऑफन हाउ। अपने आप से क्वेश्चन करें कि ये चीजें हो भी सकती हैं या ये किस तरह होंगी। चेक, अगर कोई आपको ओपिनियन दे रहा है तो अगर वो ट्रू है तो उसकी गहराई तक जाए और पता चल जाए कि क्या वो सच कह रहा है। थिंक अबाउट, अपने आप के बारे में सोचें, अपनी थिंकिंग के बारे में सोचें एंड लिसन टू अदर पीपल आइडियाज, अदर लोगों के बारे में सोचें। थैंक यू सो मच। अल्लाह खैर हाजिरियाँ अगर आपकी ना होती ना, कितनी एब्सेंट थी? तीन घर हैं, दो बीच में गैर हाजिरियाँ, नहीं 2 गैर हाजिरियाँ और एक में आपकी प्रेजेंटेशन गलत बन गई, तो 3 हो गई ना। तो यार उम्र बढ़ गई है, यादाश्त ठीक है। तो अगर ये अब खुद अंदाजा लगाइए कि ये अगर आपका एब्सेंट ना होते जी सर, तो आपको कितना फायदा होगा। जी सर, राइट। आई एम सो हैप्पी, इवन देन आई एम सो हैप्पी विद यू, बिकॉज जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा कोई पॉलिटिकल टाइप का बंदा जो होता है ना, कोई पॉलिटिकल लीडर टाइप खड़ा होकर बात कर रहा है। मतलब दिस इज समथिंग वेरी गुड। थैंक यू सर। आपके फेशियल एक्सप्रेशन बड़े खूबसूरत, हैंड्स का थोड़ा सा बात मसला था, मैंने आपको वहाँ से इशारा भी किया। वो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है हमारा, ये वाला बताएगा। नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं था, ये वाला भी नहीं है। ओ माय गॉड, ये था, ये वाला था। देखिए ये दिस वन, ये पकड़िए जरा। जी सर। याद रखिएगा ये मेरा उल्टा हाथ है, बायां हाथ, इसके ऊपर ही आना चाहिए। और ये जब हम बात कर रहे हैं, आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं, तो हाथ ऐसे चलेंगे। लेकिन जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं या मुझे कुछ आपको कहना है या बात कर रहा हूं और इसको कोई यूज नहीं है, तो फिर मैं इनको यहाँ रखूंगा। ऐसा नहीं रहेंगे, ना यू रहेंगे ना यू रहेंगे। दिस इज द राइट वे। तो मैंने वहां से इशारा किया था, तो आपने यूं कर लिया। जी सर। तो भूल गए ना? भूल गए सर। हो जाए। ठीक है, आपके कंटेंट बहुत अच्छा, थोड़ा सा इसको फोकस कर लीजिए, बिकॉज टाइम लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए कहने को बहुत कुछ कहना, तो बिकॉज ये पूरी किताब है भाई क्रिटिकल थिंकिंग। तो आई अप्रिशिएट। और मैं थोड़ी देर वहाँ पर सोच रहा था, जावेद अख्तर साहब होते हैं, मैं उनको शाबाश दे रहा था, कभी सेल्फ प्रेस्ड होनी चाहिए। और मैं ये सोच रहा था, यकीन कीजिए कि आपकी प्रेजेंटेशन, आज की प्रेजेंटेशन को देखने के बाद बहुत आते हैं लोग हमें सिखाने के लिए, बहुत आते हैं माशाल्लाह। उनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, राइट, उनकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उनके पास कहने के लिए बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब वो अक्रॉस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो फिर कम अज़ कम जो आप लोग हैं, मैं समझता हूँ बहुत लोगों से आप बेहतर हैं। थैंक यू सो मच। बहुत लोगों से बेहतर है। यू आर जस्ट बिगिनर अभी इट्स लॉन्ग वे टू गो। प्रैक्टिस करते रहें तो आप देखिए कि माशाल्लाह और बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। तो ज़रा फोकस रखिएगा, जी सर, टू द पॉइंट रहे, क्योंकि जितना डाइल्यूट करते हैं ना चीज़ों को, उतना इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। ठीक है, हैंड मूवमेंट बहुत अच्छी थी, फेशियल एक्सप्रेशंस इतने रिलैक्स्ड मैंने कभी नहीं देखे। पता ही नहीं चल रहा था कि आप लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, बाकी वॉइस की भी मैं तारीफ़ करूँगा, जिसकी ऑलरेडी बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लेके चले, और ये कि ट्रू प्रोफेशनलिज्म नज़र आ रहा था। थैंक यू सो मच सर। वेल डन। थैंक यू सो मच सर। खुश रहो। थैंक यू सर। Assalamu alaikum everyone. My name is महाम इकबाल एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में, जो हमारी नॉर्मल रूटीन, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताती हूँ कि लाइफ में किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले जब आप हों तो सबसे पहले आपने रुकना है, स्टॉप, पॉज लेना है,
किसी भी चीज़ को सोचने से पहले आपने पॉज लेना है, देन उसके ऊपर आपने क्या करना है, थिंक, सोचना है, फिर उसको सोचने के बाद आपने चूज करना है कि आप क्या चूज कर रहे हो, आपकी डिसाइड, आपने डिसीजन क्या ली है। समझ आ गई बात की कि मतलब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप, रुकना है, देन थिंक, सोचना है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग हम अब शुरू करते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई यू थिंक। इस क्रिटिकल थिंकिंग समझने की सलाहियत है कि आप क्या समझ रहे हो, आप अपने आप से क्या पूछ रहे हो कि क्यों ज़रूरी है, क्या, क्यों, कैसे। हाँ, अपने क्वेश्चंस, अपने आप को जानने का नाम एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग है। हम अपने बिहेवियर को जानते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को जानते हैं, हम अपने इमोशंस को जानते हैं। बेसिकली फील करना, थिंक करना इज ओनली अ ब्रेन से आ रही है थिंक। तो जो हम फील कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, इस टोटली हमारा ब्रेन हमें बता रहा है, तो हम कर रहे हैं। हमारे जो हम सेंस करते हैं, हम फील करते हैं, तो इट्स अ ब्रेन, कंट्रोल ऑफ ब्रेन। सेकंड जो होगा, ऑब्जर्व फीलिंग्स एंड क्वेश्चन बिलीव्स। अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें, नोटिस करें कि आप एक्चुअल क्या फील कर रहे हैं। समटाइम्स हमें नहीं पता होता हम क्या फील कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे लेट देम गो कर देते हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। नहीं, हमें नहीं पता होता समटाइम्स, तो हमें अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, जानना चाहिए कि एक्चुअल में हम फील क्या कर रहे हैं। बैलेंस लॉजिक विद इमोशंस। समटाइम्स हम बहुत लॉजिकल होकर सोचते हैं कि ठीक है, जज्बाती होकर सोचते हैं कि नहीं, उसमें चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो हमें अपने अंदर इमोशंस भी लेके आने चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, वी हैव सम इमोशंस, वी हैव सम फील, कि हम उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकें, उस चीज़ के बारे में सोच सकें। थर्ड, ऑटोमेटिक रिएक्शंस इनटू कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड। हम बहुत ज़्यादा ना जज्बाती होकर हम अपने डिसीजंस को हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। किसी कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आ रही तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। हमने अपने रिएक्शंस को रिस्पॉन्ड में बदलना है, कि हमने डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करना, हमने रिस्पॉन्ड करना है उस चीज़ को। हमने समझना है कि अगर हमें कोई कह रहा है कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो हमने ये सोचना है कि चलो ठीक है, उसने कह दिया, लेकिन हमने क्या सोचना है कि उसने हमें क्यों कहा, मतलब उसने हमें क्या देख के हमारे अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हम नहीं कर सकते। तो हमने उस चीज़ को सोचना है एज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि उसने हमें क्या क्यों कहा है ऐसा। तो अब ये क्रिटिकल थिंकिंग ये हो गया। अब हम जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। हेल्प्स हैंडल एवरी मूड एंड स्ट्रेस। जैसे हम फील जो होती है वो, आप एंग्री भी होते हो, आप सैड भी होते हो, आप हैप्पी भी होते हो, आप डिप्रेस्ड भी होते हो। आप एक जो फील है वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील है, तो आप जो उस फील को किस तरह आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है, वो उसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्ड सेल्फ कंट्रोल एंड ट्रू कॉन्फिडेंस। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल जो होगा, क्रिटिकल थिंकिंग जब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल हो सकता है, आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो। समटाइम्स ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा होता है और हम अपनी चीज़ें जो है बहुत ख़राब हो जाती हैं इस चीज़ से। तो क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम चीज़ यही है कि हम अपने आप में एक पॉज लाएं, थोड़ा ठहराव लाएं, मतलब पॉज लाएं, ठीक है। 3 पॉइंट है, मेक्स वर्ड्स एंड एक्शंस योर स्ट्रेंथ। आपका जो वर्ड्स है, आपके एक्शंस है, वो आपकी ताकत बने। ये नहीं कि आप जो हो अपने आप को डिमोटिवेट करते रहो, नहीं, आप अपने आप को हमें अपने आप को मोटिवेट ही करना चाहिए। गिव्स रियल पावर ओवर योर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी को समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी हमसे क्या चाहती है। सही, जब हमें अपने लाइफ के गोल्स पता होंगे तो हम ईजिली उसको अचीव कर सकते होंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस। अब हमें डिवेलप क्यों करनी चाहिए। नोटिस एंड रिफ्लेक्ट और फीलिंग्स डेली। समटाइम्स हमें अपनी फीलिंग्स जो हैं वो हमारी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। हम अपनी फीलिंग्स को रोज़ाना देखेंगे तो हमें कल को ये चीज़ अच्छी लग रही होगी तो वो हमें परसों वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो इसी तरह हमें अपनी फीलिंग्स को ना रोज़ाना जानना चाहिए कि हम एक्चुअल क्या फील कर रहे हैं, और हमें उस फील के बारे में हमें क्या है पता है। कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से जब जानेंगे तो एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं। पॉज बिफोर रिएक्टिंग एंड राइट इम्प्रूवमेंट्स। जब आपको किसी भी सिचुएशन में जब आप कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें पॉज लें, स्टॉप करें, सोचें कि क्यों आई है प्रॉब्लम। अगर आ गई है तो कोई बात नहीं, हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। एंड राइट इम्प्रूवमेंट्स। और जो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं उसको लिखें कि ठीक है, मैंने आज ये किया। और इम्प्रूवमेंट्स वो होंगी, आपकी अचीवमेंट होंगी जो आप इम्प्रूव कर रहे हैं। लर्न फ्रॉम ईच एक्सपीरियंस एंड कामली। मतलब आप जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कामली सॉल्व आउट करें।
गाइड योर इमोशंस, डोंट लेट देम गाइड यू। अपने इमोशंस को गाइड करें, ये ना हो कि आप अपने इमोशंस की वजह से ही आप भाग रहे हो, अपने खुद से कभी भी नहीं भागना, उसको आप जो है इमोशंस को गाइड करें ताकि आप एक अच्छी लाइफ की जितने भी सिचुएशन है आप उसको इजीली हैंडल कर सकें। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंसेस अच्छे भी हो सकते हैं ना? हाँ, अच्छे भी हो सकते हैं, मतलब अच्छे और बुरे दोनों में हमें सीखना चाहिए। एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस, ओके, कोई भी अगर एक्सपीरियंस आता है लाइफ में तो उसे हमें सीखना चाहिए, और उसी सूरत में सीखेंगे जब उसको क्रिटिकली हम सोचेंगे, एनालाइज करें। करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो 3 चीज़ें मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी लगी वो आपकी ओपनिंग स्लाइड थी। मतलब हमेशा याद रखिएगा, पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि प्रेजेंटेशन में, अपनी तकरीर में या आपकी टॉक दे रहे हैं, कुछ भी आप किसी से मुखातिब हैं, इवन वन ऑन वन मुखातिब हैं, किसी से मिलते हैं, मर्दों की बात कर रहा हूँ, हैंड चेक करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाय यंग मैन, बस। तो आपने इब्तिदा में बेसिकली ऐसा जुमला कह दिया, वाह व्हाट इज माय, अस्सलाम वालेकुम, इतने प्यारे लग रहे, वाह क्या कलर कॉम्बिनेशन। तो जो बिगनिंग है ना, जो ओपनिंग है आपकी गुफ्तगू का आगाज़ जो है, वो सोच समझ कर थोड़ा सा प्रिपेयर होकर हम करते हैं तो ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है, ऑडियंस जो है हमारी वो हमारी तरफ माइल हो जाती है, दे बेसिकली दे बिकम रेडी टू लिसन टू यू। ठीक है, और दिलचस्पी लेते हैं। तो मेरी बात लंबी हो गई, उसका हक बनता था मैं इतना इसको लंबा लेके जाऊं कि आपने जो पहली स्लाइड में क्या कहा था, सबसे पहले स्टॉप। देखिए मुझे याद हो गया, पहले स्टॉप, स्टॉप करने के बाद क्या करो, थिंक के बाद क्या करो, चूज करो, फिर चूज करो। जो थिंकिंग में आइडियाज निकले उनमें से चूज करो। चूज करना इज बेसिकली एनालिटिकल थिंकिंग। आइडियाज तो आ गए, अमंग द डिफरेंट आइडियाज यू नीड टू एनालाइज द थिंग्स के व्हाट टू चूज एंड व्हाट टू लीव, क्या चुनो और क्या छोड़ो। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. I am Noor Junaid and today I'll be presenting on something that we all do but often don't realize it, that is critical thinking. So today I'll be first introduce critical thinking, then we discuss its importance, and lastly I will share some ways to improve our critical thinking skill. So first is, what is critical thinking skill? It's the ability to think clearly and rationally. हमें अपने इमोशंस और एजम्पशंस पर अपने डिसीजंस को बिल्ड नहीं करना चाहिए बल्कि उनको लॉजिकली बिल्ड करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मीन्स एनालाइजिंग फैक्ट्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। यू डोंट जस्ट रियली जंप टू द कंक्लूजन, इन फैक्ट इवैल्यूएट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इन्वॉल्व्स क्वेश्चन आइडियाज, नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग दैट। जब आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना, आप उसके क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट, हाउ, इज दैट ट्रू, इज देयर एनी एविडेंस। जितने आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतना उस स्टेटमेंट को आप डीपली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। देन वी हैव सेपरेट ओपिनियंस फ्रॉम फैक्ट्स। अब एक होते हैं ओपिनियंस और एक होते हैं फैक्ट्स। ओपिनियन इज व्हाट समवन फील्स एंड फैक्ट्स इज व्हाट कैन बी प्रूवन। अब हमें क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए हम स्टेटमेंट को बता सकते हैं कि क्या ये ओपिनियन है या फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग इज बोरिंग, ये एक ओपिनियन है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग इंक्रीज ड्यूरिंग कोविड-19 ये फैक्ट है। तो क्रिटिकल थिंकिंग से हम ये सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है why it is important. First point is fastest problem solving. With critical thinking, you can divide a problem into smaller parts and then you can find a solution more quickly. Save from false information. आजकल की डिजिटल एज में फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। व्हाट्सएप पे हमें बहुत ज़्यादा फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं जो मेनली फेक होते हैं, तो और ये बहुत जल्दी फैल रहा है, इसलिए हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करने से पहले हमें उसको वेरीफाई करना चाहिए कि क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। Improves decision making. With critical thinking, you can create a better decision. You don't really just go with your gut, but you make decision based on logic, ideas, and long-term thinking.
makes you a better communicator. अब critical think, when your thoughts are clear, your words become clear. जब आप critical thinking से आप better communicate कर सकते हैं because you listen better and you can express your ideas more efficiently. Then we have how to improve it. First is ask more questions. जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप किसी स्टेटमेंट को, किसी थॉट को, किसी इंफॉर्मेशन या किसी फैक्ट को उतना ही डीपली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. Then we have think from other angles. For example, if someone disagrees with you, instead of reacting, you try to understand why they feel that way. Then we have check your facts. Always verify your data, information and source. Practice reflection. अपने खुद की सेल्फ के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें, रात को बैठ के सोचो कि आज मैंने ये किया, ये मैंने अच्छा किया और यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. Then we have discuss with others. जब आप दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं तो आपको उनके आइडियाज, उनके थॉट्स, उनके पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलते हैं, तो आप उसके जरिए अच्छे से अपने डिसीजन और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. लास्टली वी हैव स्टे क्यूरियस, डोंट जस्ट स्टॉप लर्निंग, आस्क क्वेश्चन, रीड मोर, एक्सप्लोर न्यू टॉपिक्स. थैंक यू सो मच. Good. जी सर. शाबाश. एनर्जी, कॉन्फिडेंस एंड द फ्लो. बहुत खूब. किस तरह से फ्लो, कहीं रुकना नहीं, को कुछ नहीं. दैट मीन्स कि तैयारी, कॉन्टेंट्स को पढ़ना, उसको समझना, उसको एक्सप्लेन करना, सारी तैयारी हो तो फिर फ्लो बन जाता है. जब फ्लो बन जाता है और चले जा रहे होते हैं तो फिर जाहिर है वो कॉन्फिडेंस भी आता है और ऑडियंस को पता चलता है कि वाह जी वाह, आज तो इन्होंने मैदान मार दिया. शाबाश. बिकॉज आई कांट फॉरगेट योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन. जब आप फर्स्ट डे, ये पहली दफ़ा जब आप यहाँ पे आई थी तो बहुत शेकी थी. ठीक है, शेकी क्योंकि हमें तो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई देती है या आपकी खूबसूरत आंखें नजर आती हैं. चेहरे से नहीं पता चलता कि फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है. बट यू वन दैट, उसको देखें और आज को देखें. आई एम सो हैप्पी. आपकी वॉइस माशाल्लाह बड़ी, फ्लो बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा. हैंड्स की, जहाँ पे हैंड्स में आपकी दो चीज़ें, एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है जब आप यहाँ पे होते हो तो जब कहते हैं ना कि ये डिफरेंशिएट करते हो, अगर आप यूँ करेंगे तो यूँ होगा, यूँ करेंगे तो यूँ होगा. तो दोनों हाथों को इधर लेके जाना, फिर इधर लेके जाना. तो आप या ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं. तो दैट शोज द बॉडी लैंग्वेज को जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी टॉक में या प्रेजेंटेशन में तो उसका एक इम्पैक्ट आता है. ठीक है, कहा जाता है कि अल्फाज का इम्पैक्ट 7% है, आवाज़ का इम्पैक्ट 38% है और बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट 55% है. राइट. तो बॉडी लैंग्वेज में हमारा चेहरा भी है, हैंड मूवमेंट भी है, खड़े होने का तरीका भी है और कॉन्फिडेंस और जो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है. एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आई डोंट नो आपको पता है लेकिन नहीं हो पाई, यहाँ हम आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि ये भूल जाएं और लेटर ऑन पछतावा हो कि जब भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो एनिमेशन, एक स्लाइड में एनिमेशन मिसिंग थी, पहली वाली स्लाइड में शायद. तो एनिमेशन, अब मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि हमारी पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आते ही अगर कोई चीज़ नजर आए, ये हमारी ह्यूमन नेचर है, कहाँ कहीं गलती नजर आए तो फ़ौरन क्लिक करती है. गो के मेरी मैं अच्छाइयाँ देखता हूँ क्योंकि मेरी किसी भी, अगर आप देखें ना गौर से, मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ये मेरी आज की है, ये सारी आपकी स्ट्रेंथ्स लिखी हुई है और इधर एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है. आप बताइए एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है या स्ट्रेंथ ज़्यादा है? स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो आप में है ना, अच्छी बात है ना. ठीक है, लेकिन कभी भी ये हो एक अगर ऐसी चीज़ तो बता देना अच्छी बात होती है ताकि हम उसके लिए मोहतात हों और केयरफुल हों फॉर द फ्यूचर प्रेजेंटेशन. ओके, सो आई एम सो हैप्पी विद यू. खुश रहें आप. थैंक यू. Assalamu alaikum everyone. My name is Saad Jamil and I am the student of Digital Media in Punjab University, and today we will talk about critical thinking. Critical thinking is not about being negative, it's about being wise. अक्सर देखा जाता है कि जो ज़्यादा फैसला करते हैं लोग कुछ लेते हुए या कुछ ख़रीदते हुए या कुछ बेचते हुए, तो लोग कहते हैं कि तुम पागल हो, ज़्यादा सोचते हो.
लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये एक वाइजपन होता है, एक दानिशमंदी होती है कि आप एक फ़ैसला अगर लेना चाह रहे हैं तो उसको अच्छे से पहले सोचें। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, उसके मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि है थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो ये क्या है कि हमने अगर कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये चीज़ इको फ्रेंडली है या नहीं है, और अपना बजट भी देखना चाहिए कि हम वो ख़रीद तो लें गाड़ी, लेकिन अगर उसका कोई भी पार्ट है, कोई भी स्पेयर पार्ट्स हैं, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो हम उसको भी बेयर कर सकें, उसके भी लॉस को बेयर कर सकें। तो ये क्या है कि पहले आप क्रिटिकली सोचें एक चीज़ को, जो भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है या जो भी आपने चीज़ ख़रीदनी है, तो सबसे पहले मेन चीज़ हमारी होती है क्रिटिकल थिंकिंग करना उस चीज़ के बारे में। सेकंड पॉइंट है नॉट बिलीविंग एवरीथिंग ब्लाइंडली, चेकिंग फैक्ट्स फर्स्ट। आज के ज़माने में जब AI हर जगह पे हमें नज़र आता है तो बहुत मुश्किल हो चुका है डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी चीज़ फेक है। अभी हमने देखा गूगल का VO3 एक वर्जन है जो कि अभी लॉन्च हुआ है, तो उससे ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नहीं पता, तो वो बिल्कुल ऐसे ही सर बिलीव करेंगे कि ये चीज़ रियल में हो रही है। तो इस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन कौन करेगा? जो कि क्रिटिकल थिंकिंग करेगा कि ये चीज़ कैसे सच हो सकती है या फेक है तो कैसे हो सकती है। अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि जो भी AI वीडियो क्रिएटेड होगी ना AI से, तो उसमें आप हैंड के जेस्चर्स देखिएगा, आप जो है हमारे ऑर्गन्स देखिएगा, वो उतने क्लियर नहीं होते, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो वीडियो है ये क्लिप है, ये AI जनरेटेड है। थर्ड वन इज़ अवॉइडिंग इमोशनल और क्विक डिसीजंस यूजिंग रीज़न। समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने दिमाग की बजाय दिल की सुन लेते हैं और गलत फैसले कर बैठते हैं, तो ये नहीं करना और दिमाग से सोचना है। दिमाग से सोचना क्या होता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। द लास्ट वन इज थिंकिंग फॉर योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अदर्स। जैसे कहते हैं लकीर के फ़कीर नहीं बनना, तो इसका क्या मतलब है कि यू हैव योर ऑन ओपिनियंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हर चीज़ में। और अगर कोई आपसे ओपिनियन पूछे, जैसे सर ने पूछा, तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ एडिशन करना चाहिए, अपना ओपिनियन बताना चाहिए। अगर नहीं बताते तो क्या होगा? वी आर फॉलोइंग द क्राउड एंड जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, मैंने आगे भी मेंशन किया, लेकिन सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा कि हमने जितने भी सीज पढ़े हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंस है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो कोलैबोरेशन है या क्रिएटिविटी है, अगर उन सब के बावजूद हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो वो किसी काम के नहीं है। तो फर्स्ट वन इज प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग फूल्ड। क्या होता है, आजकल स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है HEC की कॉल और SMS आ रहे थे स्टूडेंट्स को, वो फेक थे सारे, कि अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है वेरिफिकेशन करवाएं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है उनके हत्थे भी चढ़ गए। तो वो क्या था, एक स्कैम था। हमेशा अपने जहन में रखें कि कोई भी ऑफिशियल एक इदारा जो है या एक इतना बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको डायरेक्टली इस तरह कॉल पे रीच नहीं करती। जो प्रोफेशनल तरीका है वो ईमेल होती है। ओके, द सेकंड ये है कि जो मैंने अभी बात की कि स्कैम्स वगैरह से बचाता है। सेकंड इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यू मेक बेटर चॉइसेस इन स्टडीज, रिलेशनशिप्स, मनी, एवरीथिंग। अभी हमने बात की, जैसे भाई ने बताया कि मैंने जब पढ़ना था तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ओपिनियंस दिए, तो मैंने सोचा कि मैंने LLB करनी है या जो भी करना है, तो वो IBA से अभी स्टडी कर रहे हैं अपने बेस्ट इंस्टीट्यूशन से जहाँ से वो करना चाहते थे। द सेकंड वन इज सोल्व प्रॉब्लम बेटर। जब हम क्रिटिकली थिंक करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम परेशान नहीं होते और आराम से सोच के उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी है कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, मैं शॉर्टली बताऊंगा कि राइट योर थॉट्स। हमने क्रिएटिविटी में भी बात की थी कि हम जब जिम कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो है थॉट प्रोसेस है वो चलता रहता है, तो हमें अपने साथ नोट्स रखने चाहिए और हम जो भी बात है उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। सेकंड है सोल्व पजल्स, प्ले लॉजिक गेम। जैसे अब इन्होंने बताया कि हम जब चेस खेलते हैं तो हमें 2 स्टेप अहेड का जो है हमें पहले सोचना पड़ता है। तो जब हम गेम्स खेलते हैं, पहेलियाँ जो है खेलते हैं, तो इससे हमारी जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल है वो बेटर हो जाती है। द लास्ट वन इज थिंक अबाउट योर थिंकिंग, कि आपने भी जो फैसला कर लिया है उसके बारे में भी सोचें कि ये चीज़ फेयर है, अनफेयर है, और अगर अनफेयर है तो उसको सॉल्व करें, और अगर फेयर है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एनी क्वेश्चंस? कुछ नहीं सर, टाइम शॉर्ट हो गया। हो जाए जितना कीजिए अच्छा हो गया। स्लाइड टेम्पलेट बहुत खूबसूरत, स्लाइड का मटेरियल बहुत खूबसूरत, और उसके कंटेंट्स रियली रिसर्च करके बाकायदा लिखे गए और उसके ऊपर प्रैक्टिस की। एक चीज़
और मुझे इनकी प्रेजेंटेशन और आप लोगों की प्रेजेंटेशन देखते हुए अल्लाह करे एक वो दिन आए कि जब कोई यहाँ स्पीकर आए तो साथ ये भी कहें कि जी मैं 2 साल पहले इसी जगह खड़े होकर मैंने राइजिंग स्टार्स का सेशन दिया था इंशाल्लाह और टुडे आई एम द वन हु इज टॉकिंग टू यू, दैट वाज माय बिगिनिंग और इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह आई एम सो मच कॉन्फिडेंट आज जो मुझे नज़र आ रहा है। सिर्फ एक चीज़ आपके लिए गुजारिश है, वो ये है कि जब हम मूव कर रहे होते हैं तो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। कभी टूट जाता है, कभी हम नीचे देखते हैं, उधर देख रहे होते हैं, उधर देख रहे होते हैं, और कुछ हो सकता है आपके पसंदीदा लोग हों सामने बैठे हुए, जैसे मैं हूँ, तो क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब आपका आई कांटेक्ट होता है तो वो बार बार मेरी तरफ आपकी वो आता है, तो मैं कई दफ़ा कोशिश भी करता हूँ, कहता हूँ सबको देखो, तो इसलिए आई कांटेक्ट इज अदरवाइज। ओके सर, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू सो मच। सर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि थैंक यू सो मच फेलोज और सर जो रिस्पेक्ट टीम के बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया और फॉर बीइंग सो काइंड एंड हम्बल ऑल ऑफ द टाइम। आपने मेरी तारीफ की जी सर, सच्ची? यस सर, बहुत अच्छी, जज़ाकल्लाह, खुश रहे आप। हाँ आप भी सर।